Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well at home. Okay, so today in this video we are going to study chapter 3. Okay, uh, the name of your chapter is Asian Towns and Scriptures. Okay, so here in this chapter we already told you that what is the meaning of ancient. Okay, so meaning of ancient is too old. ओके बहुत पुराना टू ओल्ड टाउन टाउन मीन्स स्मॉलर देन सिटी ओके स्मॉलर देन सिटी जो मतलब सिटी से छोटा होता है उसको हम टाउन कहते हैं एंड द स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक ओके सो religious book. So here in this chapter we are going to this type of information. Okay, this type of information we have to definitely study about the old Indian civilizations. Okay, so but type of the civilization in the old time. Okay, in this chapter we will discuss. Okay, so in the old time which type of culture and which type of civilizations. Okay, so and we are also study about Harappa civilizations and Mohenjo-daro. Okay, so in this chapter we will discuss about the cultures and civilizations of old Indian. Okay, so without wasting our time we start chapter 3. Okay, so name of your chapter is the एशियन टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स मतलब पुराना जो हमारा कैसे टाउन्स कैसे होते थे, रिलीजियस बुक्स कैसी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? So we often hear. Often means sometimes we hear the two words, culture and civilization. So here you need to understand what is a culture and what is a civilization. So for us it is a two same word, culture and civilization, but the meaning of these two words are totally different. Okay, ऐसे तो हमें लगता है कि दोनों वर्ड एक ही हैं, culture and civilization, but the meaning of these words are different, totally different. Okay, so it is a joint with the human life. ये किससे joint करते हैं? Human life से. So culture is a matter related to human life. Okay, so meaning of culture is matter related to human life. जो human life से relate करता है उसे हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं. And while the civilization is developed by human being. Civilization is developed मतलब उसके द्वारा बनाई जाती है. किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग के द्वारा. civilizations which he create fights on calibers and skills and creative skills. Okay, so caliber. So here the caliber is a new word for you. Caliber. Okay, calibers means the mental ability. Okay, mental ability. Caliber means. Okay. So while civilizations is developed by human being which is created by his own caliber means mental ability. जो उसकी mental ability से create की जाती है, उसके skill से, उसके हुनर से, उसके creative skills से जो भी चीज़ें develop की जाती है, मतलब जो वो नई चीज़ें सीखता है with the help of mental ability, skill and उसके जो भी उसमें हुनर होता है उससे वो नई नई चीज़ें एक प्रोडक्टिव चेंज करता है. सो this is the civilization. Okay, so don't get be confused with culture and civilization. So you remember always culture is related to human life and the civilization is developed by human being. मतलब जो कल्चर होता है वो रिलेट करता है ह्यूमन लाइफ से. ओके, एंड द सिविलाइजेशन जो होती है वो डेवलप्ड की जाती है किसके द्वारा? बाय ह्यूमन बीइंग. ओके,
and he create with his own mental ability, skills, and the creative skills. Okay, so I hope you understand the meaning of culture and civilization. Okay, so there two uh, there two have their different meanings. What is culture and what is a civilization? So you always remember the meaning of culture and civilization. The culture is related to human life and the civilization is developed by human being. Okay, जो भी वो प्रोडक्टिव चीज़ें बनाते हैं अपनी विद द हेल्प ऑफ द मेंटल एबिलिटी, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, तो उसको क्या कहा जाता है? सिविलाइजेशंस कहा जाता है. ओके, सो नेक्स्ट, Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such a civilization of the human society. The name of these 5 countries: Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome. Okay, these such countries as the great civilizations of human society. You always remember the name of these 5 countries. Okay, so centuries old civilization still inspires humans life. Inspires means motivate. Okay, you can say the inspire means motivate. So the old civilizations जो है वो हमेशा स्टिल मतलब इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है किसको? ह्यूमन लाइफ्स को. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द Harappan civilization. Okay, ancient India. So in this Harappan civilization, so we call this Harappa civilization. Okay, Harappan civilization we are also called the name of Harappa civilization. We say the Harappa civilizations. Okay, so in this chapter we will discuss about the Harappan civilizations, ancient India. Okay. We know Harappa civilization is also known as the Indus Valley. Okay, so the another name of the Harappan civilization is the Indus Valley civilization. Okay, so again it is very important for you. The another name of the Harappan civilization is known as Indus Valley civilizations. Indus is the name of river. के रिवर एंड वैली सिविलाइजेशंस, मतलब जो रिवर का जो हिस्सा होता है वहाँ की जो सिविलाइजेशंस थी उसे क्या कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशंस. रिमेन्स ऑफ दीज सिविलाइजेशंस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921. remains of this civilization. Remains means the skeletons, the bones, जो भी remains मतलब जो भी हमें मिला है किसका? Discovered by the Harappa civilizations. Okay, so first discovered Harappa civilization in 1921. So जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो डिस्कवर्ड की गई थी. कब डिस्कवर्ड की गई थी? 1921 में. ओके, जो हमें वहाँ पर रिमेन्स जो भी मिले थे. तो मैनी ऑफ द प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशंस, ओके, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी एट्सेट्रा. ओके, सो मैनी ऑफ द प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत सारे प्लेसेस थे सिविलाइजेशंस के, और वो कहाँ पर पाए जाते थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का वहाँ पाए जाते थे. उस वो कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? एक हड़प्पा एंड सेकेंड मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी एट्सेट्रा. ओके, सो see the locations of places of Harappa civilization in the map. So you see in your textbook you see there a map. Okay, the map is related to the places of Harappa civilization. So let us introduction of town planning of some of the major cities and their features. Features mean main characteristics. Okay, main characteristics. So
in the next slide we will discuss about the introduction of the town planning कि उनकी town planning कैसी थी और उनके main जो characteristics थी वो क्या थी. Okay, so see, this is the map. Okay, places of Harappa civilization. In this map you see the places of Harappa civilization. You see Mehergarh, okay, Dholvira, Lothan, Rangpura, Saurashtra, Ahmedabad, okay, Punjab, Jabalpur, Harappa, Ropar, Seraikota, so Thor Desert, Sindh, so Sindhu River. So these are the places of Harappa civilization you see in your textbook. Okay, this map is already given in your textbook. You see the see your textbook. Okay, तो आप आपकी textbook में इन places को अच्छे से read कर सकते हो. These places are related to the places of Harappa civilization. Okay, so in this next we will discuss about the town planning कि उनका town planning कैसा था, उनके towns कैसे थे, उसके बारे में हम अभी जहाँ पर discuss करेंगे. ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग. ऑर्गेनाइज्ड मतलब वेल प्लान्ड, मतलब ऑर्गेनाइज किया, मतलब तरीके से बनाया गया. वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मतलब कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है उसकी, वो क्या थी हड़प्पा सिविलाइजेशंस की. ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग मतलब अच्छे तरीके से प्लान किया गया, ऑर्गेनाइज्ड किया गया टाउन प्लानिंग को. सो यू ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है, द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज, तो आंसर इज दैट ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग. ओके, सो ऑल द टाउन्स वर प्लान्ड इन सिमिलर वे. सिमिलर वे मतलब सेम वे. ओके, सब सेम तरीके से प्लान किए गए थे. इन ऑल प्लेसेस फोर्ट मीन्स किला. ओके, देखा है ना आपने राजे महाराजाओं का किला. तो ऑल द प्लेसेस फोर्ट वाज ऑन द वेस्ट वार्ड साइड, मतलब जो वेस्ट साइड थी वहाँ पर क्या था, फोर्ट थे, मतलब किले थे. एंड द कॉलोनी ऑफ द कॉमन पीपल, जो भी कॉलोनीज थी कॉमन पीपल्स की, वो कौन सी साइड पे थी, ऑन द ईस्ट साइड, वो ईस्ट साइड पे थी. ओके, सो मतलब वेल प्लान किया गया था. तो वेल प्लानिंग में क्या किया था उन्होंने कि जो फोर्ट साइड थी, जहाँ जो फोर्ट थे, जो किले थे, उसको उन्होंने वेस्ट साइड पे बनाया था, और जो कॉमन पीपल्स की कॉलोनी थी उनको ईस्ट साइड पे बनाया था. लेकिन आप ये सोचो कि हमें कैसे पता चलता कि जब भी कोई देखता तो कैसे पता चलता ये फोर्ट वाली साइड है और ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है. तो उन्होंने क्या किया था, हाईवे सेपरेट बोथ ऑफ देम. तो हाईवे था बीच में जो उनको सेपरेट करता था. समझ में आया. तो हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. सो द फोर्ट ऑन द वेस्ट वाज सराउंडेड बाय द फोर्टनेस. फोर्ट्रेस होता है बाल, मतलब दीवार. तो जो भी फोर्ट जो थे वेस्ट की साइड पे, उनको सराउंडेड किया गया था किससे, बॉल से, मतलब दीवार बनाई गई थी उनकी साइड पे. एंड मोस्ट द प्रोबेबली रूल्स वुड हैव लिव्ड इन फोर्ट. तो आपको पता ही है कि जो रूलर्स होते हैं, जो किंग होते हैं, वो कहाँ रहते थे, फोर्ट में रहते थे. एंड ब्रिक आर आल्सो यूज्ड इन द टाउन स्ट्रक्चर्स. तो ब्रिक्स का भी यूज़ किया गया था, जो ईंटें होती हैं उसका भी यूज़ किया गया था. किसके लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ द अनदर फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन. से तो हमने उनके हाउस, जो उनका मतलब कि कॉलोनीज थी, जो उनके फोर्ट थे, जो कॉमन कॉलोनीज थी, उसके बारे में हमने पढ़ा. अब हम नेक्स्ट और इसके हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो वेरियस फीचर्स हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके, so main feature of the Harappa civilization was organized house arrangement. So the main feature of Harappa civilization was their organized house arrangement. So उनके जो house थे उनको भी एक organized मतलब well planned तरीके से जो उनके घर थे वो बनाए गए थे. The houses were constructed on the high platform. So main feature of the house is high
कंस्ट्रक्ट ऑन द हाई प्लेटफॉर्म, एक तो उनको हाई प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था. क्यों? वट वॉज द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड एंड डैम्पनेस. डैम्पनेस मीन वेट, डैम्पनेस मीन वेट एरिया. तो जो भी मतलब कि गीला एरिया से बचाने के लिए और फ्लड से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उनको प्लेटफॉर्म पे, ऊंचे हाई प्लेटफॉर्म पे जो हाउसेस थे उनको कंस्ट्रक्ट किया था. ओके, सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द हाउसेस ऑफ हड़प्पा वाज दैट द मेन गेट ओपन इन द लैंड्स rather than toward the main road. Okay, as far as their house is concerned, the gate open in lanes, not in a main road. Lanes mean छोटी जो स्ट्रीट होती है, वहाँ उनके जो हाउसेस थे, उनके गेट जो थे वो गली में खुलते थे, कि नॉट इन ए मेन रोड. ओके, कि मेन रोड में नहीं खुलते थे उनके जो भी घर थे. ओके, here single and double story houses were seen. Okay, so at the ancient time, in the present time we also see the single story and double story, but in the ancient times, okay, in the Harappa civilization also have the single and double story houses were seen. तब भी हाउस होते थे कैसे, सिंगल स्टोरीज एंड डबल स्टोरीज, एंड रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल. जो रोड्स थे वो बहुत ही कंफर्टेबल थे. तो देयर वर टू हाईवे इन द सिटी. सो देयर वर टू हाईवेज, ओके, इन द सिटी. सो वन ऑफ द कनेक्टेड विथ नॉर्थ विथ साउथ, मतलब जो नॉर्थ का था वो साउथ से कनेक्ट करता था. ओके, एंड द अदर कनेक्टेड विद ईस्ट विद वेस्ट. ओके, जो ईस्ट था वो वेस्ट से कनेक्ट करता था. ओके, सो जो रोड्स थे वहाँ पर क्या थे, टू हाईवेज थे सिटीज़ में. ओके, वन ऑफ इज कनेक्टेड विद द साउथ, जो साउथ था, नॉर्थ था वो साउथ से कनेक्ट करता था, एंड जो ईस्ट था वो वेस्ट से कनेक्ट करता था. ऐसे उनके जो हाउसेस, जो रोड्स थे इन द हड़प्पा सिविलाइजेशंस. ओके, सो here streets were parallel to the main roads. Parallels mean ऐसा, okay, parallel lines. Okay, and road intersect each other in the right angles. Intersect mean you also studying your maths. Okay, this is the rectangle. Okay, so the road जो थे वो intersect करते थे आपस में. The streets are parallel in the main road. Okay, streets जो थी वो parallel थी, ऐसी थी, लेकिन जो रोड्स थे वो इंस्ट्रक्ट करते थे ईच एट द राइट एंगल. ओके, राइट एंगल विच इंस्ट्रक्ट एट द राइट एंगल. ओके, एंड द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन such a manner that the whole town could divide into square and rectangular section. Okay, so the roads जो थे, जो भी उनके रोड्स थे, जो भी उनका स्ट्रीट्स थी, वो एक तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी, और जो भी उनका टाउन्स था उसको कैसे डिवाइड किया गया था, स्क्वायर में, और फिर स्क्वायर और एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस में उनको डिवाइड किया गया था. ओके, सो देयर वाज नेक्स्ट सॉरी एविडेंस ऑफ द नाइट लाइट सिस्टम आल्सो वी ऑब्टेन इन ऑन द public road. So in the present time we have a street light also. Okay, so in the ancient times there the evidence mean proof, जो हमें proof मिलता है, उससे proof मिलता है कि नाइट लाइट सिस्टम भी था उस टाइम पर पब्लिक रोड्स पर. ओके, there was highly developed in the systematic system of disposal of water. Okay, so disposal of water मतलब it is again it's very important. ओके, गुड सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर, जो भी उनका वाटर डिस्पोज होता था उसका भी सिस्टम बहुत अच्छा था इन द हड़प्पा सिविलाइजेशंस. ओके, द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फ्लाउड इन द स्मॉल स्वेयर, जो कि स्मॉल स्वेयर में जाता था, एंड द फ्रॉम द स्मॉल स्वेयर इनटू द लार्ज स्वेयर, जो भी वो पानी था वो छोटे में से कहाँ जाता था, बड़े वाले स्वेयर में. तो वाटर फ्रॉम लार्ज स्वेयर फ्लाउड इन द सिटी ऑफ द टाउन, जो भी लार्ज वाला जो स्वेयर था उसमें से जो पानी था वो कहाँ निकलता था, फिर सिटी या फिर टाउन से बाहर निकलता था. ओके, अ पब्लिक बाथ वाज अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड सिस्टम था.
समझ में आया ना आप लोगों को? मतलब अंडरग्राउंड जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमें ओपन जो नालियाँ होती हैं वो नहीं मिलती हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसा सिस्टम था कि जो पानी था घर का वो छोटे वाले सीवर में जाता था और वहाँ से वो बड़े वाले सीवर में, तो बड़ा वाला जो सीवर था वो कहाँ जाके पानी को फेंकता था? आउट ऑफ द सिटी, जो आर टाउन। ओके, अ पब्लिक बाथ हैज़ आल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ओके, पब्लिक बाथ मतलब इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इस पॉन्ड वाज बाथिंग। सो पब्लिक बाथ भी था और पब्लिक बाथ के लिए एक पॉन्ड था। ओके, उनके सेंटर में एक पॉन्ड हुआ करता था। ओके, सो मतलब कि एक पॉन्ड है। ओके, सो उसके जो देर आर द स्टेप्स अरेंज्ड ऑन द बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे स्टेप्स थी। ओके, उतरने के लिए, पॉन्ड में जाने के लिए। एंड देर आर चेंजिंग रूम्स। ओके, अराउंड द वॉल्स, मतलब उसके आसपास क्या था? चेंजिंग रूम्स भी थे। ओके, दिस पब्लिक बाथ्स वुड हैव बीन यूज्ड फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस ओकेजन। सो which time the people use this pond? तो they used pond on public bath on the occasion or festival. Okay, कब यूज़ करते थे वो? कब यूज़ करते थे? जब कोई ओकेज़न या फिर कोई फेस्टिवल होता था तब उस पब्लिक बाथ को वो यूज़ करते थे। और पब्लिक बाथ जो था वो एक पॉन्ड के आसपास बनाया गया था और पॉन्ड के आसपास में चेंजिंग रूम्स भी थे। ओके, मतलब वेल प्लान था वो। नेक्स्ट, सो इन एडिशन टू दिस पिलर्ड हाउस यूज एज असेंबली हाउस, मतलब वहाँ असेंबली हाउस की फैसिलिटीज़ भी थी। हैव आल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में असेंबली हॉल्स भी थे, जो कि अभी हम देखते हैं असेंबली हॉल्स, तो उस टाइम पर भी क्या था? असेंबली हॉल्स थे। ओके, सॉरी। Hadappa is an archaeological site located in the Montgomery district of Punjab, currently Pakistan. Hadappa must have been the main town of the Indus Valley civilization. Okay, so the Hadappa is the archaeological site. जो archaeological site थी हड़प्पा, वो कहाँ लोकेटेड किया गया था? मॉन्टगोमरी में, और जो कि डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है, लेकिन करंटली वो कहाँ पे पाया जाता है? अभी पाकिस्तान में। सो द हड़प्पा हैज़ बीन द मेन टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन जो टाउन था वो कौन सा था? हड़प्पा। सो द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पा इज़ ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स टू स्टोर, ग्रेन स्टोर। ओके, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ओके, तो मेन फीचर ऑफ द हड़प्पा इज़ इट्स ग्रेनरी, कि मतलब उन मेन फीचर्स क्या था उनका कि वो क्या करते थे? स्टोर करते थे किसको? उसको, ग्रेन्स को। सो अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स। ओके, 12 ग्रेन स्टोर्स थे ग्रेन को स्टोर करने के लिए। उन्होंने 12 ग्रेन स्टोर बनाए थे। हैव बीन फाउंड ऑन द रिवर ऑफ रॉबी, जो कि रिवर ऑफ रॉबी में पाए गए थे। सो लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भागवो रिवर इन दोलका तालुका। ओके, तो लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्रेगो। लोथल मीन्स ए पोर्ट। ओके, लोथल पोर्ट। ओके, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगाबो रिवर इन द दोलका तालुका इन अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद में है। ओके, सो लोथल वाज ए कमर्शियल पोर्ट। कमर्शियल पोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। ओके, एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एशियन टाइम। सो लोथल इज ए पोर्ट वेयर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, जहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था और इम्पोर्ट किया जाता था एशियन टाइम में। लोथल जो है वो पोर्ट है।
अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, ब्रिक से बना है, हैज़ बीन फाउंड इन द लोथल्स। ओके, इट इज़ कंसिडर दैट मस्ट हैव बीन द डॉक जॉर्ड। डॉक जॉर्ड मीन रिपेयर एंड प्रिपेयर शिप, जहाँ पर रिपेयर किया जाता है शिप को और फिर प्रिपेयर करने के लिए, वो उसे डॉक जॉर्ड कहा जाता है। ओके, इट कैन बी अज्यूम दैट द वेसल्स अराइविंग हेयर वर यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। तो जहाँ पर लोडिंग किया जाता है गुड्स को, या फिर एज्यूम होता है गैस, एज्यूम मीन्स गैस। ओके, तो जहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है। इन एडिशन वेयर हाउस एंड वीट फैक्ट्री। वेयर हाउस मीन्स बिल्डिंग, ओके, स्टोर हाउस, जहाँ पर स्टोर किया जाता है चीज़ों को, उसके वेयर हाउस कहा जाता है, एक बड़ा सा बिल्डिंग। एंड वीट फैक्ट्री have been found here, so it can be said that the Lothal was a prosperous port of ancient India and international trade. Trade means व्यापार, trade mean व्यापार of the Harappa civilization must have been done through the port of Lothal. So the port of Lothal was a prosperous port. Okay, was the ancient India, of the ancient India। क्यों, इससे international trade भी किया जाता था at the time of ancient times। Okay, so during that time with the help of Lothal port, okay, which port, that is Lothal port, okay, used in the international trade। okay, बाहर की जो कंट्रीज़ के साथ भी जो व्यापार किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था, लोथल पोर्ट से किया जाता था। नेक्स्ट, डोलवेरा। Dolavira is the archaeological site located in Khadirwet area in Barchu Taluka, Kutch. Okay, generally the Harappa civilization town-wise into two part bilaterals. Okay, while the towns of Dalvira is divided into three part, it's called trilateral. So the towns are divided into two parts is called bilateral, and the towns divided into three parts is called trilateral. Okay, so citadel fort, upper town, lower town. Citadel fort, citadel forts means that is are belong to the rulers. Okay, so the main specialty of the Dalvira town is rainwater harvesting systems and stadium. Okay, so हार्वेस्टिंग सिस्टम था, मतलब रेन वाटर को मेन जो उनका जो डॉलविरा का जो मेन स्पेशल जो फीचर्स था वो क्या था कि वो रेन वाटर को इकट्ठा करते थे। हार्वेस्टिंग सिस्टम जो ऑलरेडी स्टडी इन द साइंस। ओके, मतलब रेन वाटर को इकट्ठा करना, मतलब जमा करना। ओके, Kilwanga town of Rajasthan was the headquarter of agriculture revolution Harappa civilization. So the revolutions मतलब कि something new. Okay, so कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान में पड़ता है, was the headquarter of agriculture। जो भी एग्रीकल्चर में कुछ नया हुआ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, वो कहाँ पर हुआ, टाउन ऑफ राजस्थान, कलीबंगन में। द रिमेन्स ऑफ फॉर्म्स हैव बीन हेयर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस। ओके, जो रिमेन्स थे, रिमेन्स मतलब आपको पता ही है कि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ से फॉर्म्स की, जो हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है प्रूफ्स का, दैट द कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर। ओके, द कॉपर residue found, residue means remains। okay, residue means remain, residue found that here proved the copper tools must be in manufactures and these tools might have been used in agriculture। manufactures mean produce, मतलब बनाना। okay, so जो भी वो कॉपर
टूल्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चर्स किए थे, बनाए थे, वही टूल्स वो किस में यूज़ करते थे, एग्रीकल्चर में। ये हमें रिमेन्स से पता चला, जो भी प्रूफ्स हमें मिले हैं। Thus the town planning of the Indus civilization was well organized. So the टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, जो भी इंडस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल इंजीनियर थी, वेल प्लान्ड एंड वेल एंड एफिशिएंट, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे तरीके से बनाई गई। वेल इंजीनियर्स में जो भी इंजीनियर्स थे उसमें जो भी फैक्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो भी हाउसेस का जो स्ट्रक्चर बनाया था, कॉलोनी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो भी एक वेल इंजीनियर्स पता चलता था कि किसी अच्छे इंजीनियर ने इसको प्लान किया है। वेल प्लान, बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। सो इट इज़ ए वंडरफुल रिफ्लेक्शन, एक बहुत अच्छा, एक वंडरफुल मतलब कि आप कह सकते हो अद्भुत, अद्भुत एक रिफ्लेक्शन पड़ता था गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग इलाइट, elites. So the elite is a new word for you. Elites mean the social powerful group. Okay, so the जो भी उनका एक पावरफुल ग्रुप था, उसके मतलब एक रिफ्लेक्शन पड़ती कि एक पावरफुल ग्रुप है वो। ओके, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन। ओके, और जो भी उन्होंने मतलब आपने हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उनके जो हाउस थे वो भी उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज किए थे, कॉलोनीज थी, मतलब हर सिस्टम जो था, स्ट्रीट सिस्टम था, स्ट्रीट में लाइट सिस्टम था, एंड हाईवेज थे, एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। सो दिस इज़ द प्रूफ, तो हमें प्रूफ देती है कि वहाँ के जो इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर, जो इंटेलिजेंसी किसकी थी, वो इंजीनियर्स की, जिसने वो नक्शा, जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया था। ओके, जो क्राफ्टमैनशिप थे, जिन्होंने क्राफ्टिंग का काम किया था। सो इट इज़ ए वंडरफुल रिफ्लेक्शंस। ओके, सो आई होप their topics are clear to you. We continue within next video. Okay, thank you, have a nice day.